A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics in September. So after that we are continuously revise the chapters of your macroeconomics and the Indian economic development. So in the macroeconomics we have done the numbers of the numerical questions related to chapter national income and its related aggregates, as well as the income determination and the multiplier. Simultaneously, we have also discussing some theoretical chapters of your economics like foreign exchange rate, balance of payment, government budget, aggregate demand, aggregate supply, income determination and the what is multiplier, relation between MPC and multiplier, as well as excess demand, deficient demand, fiscal policy, monetary policy. We have continuously revised all the topics. So after that we have started to solve the sample papers. So we have already solved the CBSE sample paper, which is issued by the CBSE in October 2020. After that we have discussed the paper CBSE examination paper 2020, and after that we have started to solve the CBSE examination paper 2019. So in the previous class, I think we have discussed all the questions which is related to set 1, and we have also started to solve the question which is related to set 2. So few of the questions which are different we have already discussed. So in today's class we are going to study some other topics or the questions which is already came in your examination, CBSE examination. Okay, so let's get started. So firstly we will discuss with the question is given here, estimate the, so it is the question number, it is question which is already came in CBSE examination paper 2019, and it is of 3 marks. So question is given here, estimate the change in the final income. 3 marks का question है ये. Okay, so information is given. Final income. Final income you have to calculate. If MPC marginal propensity to consume is given, that is 0.75. Okay, and change in initial investment. Change in initial investment means delta I. Delta I is given, that is rupees 2000 crores. Okay, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे आपको फाइनल इनकम दैट इज चेंज इन इनकम कैलकुलेट करना है, चेंज इन इनकम. ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मल्टीप्लायर का. सो K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. सो ये क्या हो गया? 1/1 माइनस MPC की वैल्यू इज गिवन दैट इज 0.75. सो 1/ माइनस 0.75 क्या हो गया आपका? 0.25. सो K की वैल्यू क्या आ गई? 4. ओके, K की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई. नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे? दैट इज डेल्टा K इक्वल टू, अगेन क्या होता है? K इज मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. राइट, डेल्टा Y की वैल्यू क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट. K की वैल्यू दी है दैट इज 4 इज इक्वल टू डेल्टा Y इज नॉट गिवन अपॉन डेल्टा I क्या है? 2000. सो डेल्टा Y क्या हो जाएगा आपका? 4 2 जा 8 रुपीज 8000 crores. देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. आई थिंक 3 to 4 लाइन में यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एंड यू गेट दी 3 मार्क्स. टोटल 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. बस आपको यहाँ पे जो भी स्टेप्स है, जो भी क्वेश्चंस दिया है, जो पूछ रहा है, वो आपको बस इजीली क्या करना है? कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन दे रहा है, डिस्कस ब्रीफली द क्रेडिट कंट्रोलर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. कि क्रेडिट कंट्रोलर फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का? सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोलर आपको याद होगा क्रेडिट कंट्रोल करता है. देखिए 2 कंसेप्ट होता है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन एंड द क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट क्रिएशन मीन्स क्रेडिट को क्रिएट करना, मनी को क्रिएट करना. सो मनी को क्रिएट कौन करता है? जो डायरेक्टली
कंज्यूमर से, कस्टमर से लिंक करता है, और कस्टमर से कौन करता है? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? टू मेन फंक्शन करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड दी एडवांसिंग लोन। तो जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसी डिपॉजिट को वो क्या करता है? कुछ मिनिमम परसेंटेज अपने पास एज अ रिजर्व रखता है। वो रिजर्व, वो रेट कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है। और उसके अलावा जो भी फंड बचा, जो भी मनी बचा, वो उसको लोन पे दे देता है। वहीं दूसरा कंसेप्ट होता है क्रेडिट कंट्रोल, मतलब क्रेडिट जो भी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं मनी, उनका कंट्रोल करना। उस केस में क्या होता है? वो कौन करता है? वो करती है सेंट्रल बैंक। अब क्रेडिट को कंट्रोल करने के टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो जिसमें हम लोग बात करते हैं मनी सप्लाई की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मनी सप्लाई इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं तो कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR एक्सेट्रा। ये सारा क्या है? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो इन सारे के थ्रू क्या करती है? सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें कि किस क्वालिटी की मनी सप्लाई इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात नहीं करते, क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग ने पढ़ा है? मॉरल सुएशन, नेक्स्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड थर्ड वन इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इनके थ्रू क्या करती है सेंट्रल बैंक? इकोनॉमी में मनी को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है। आपको इसमें जो क्वेश्चन है इट इज ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको यही क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन सेंट्रल बैंक का कर देना है कि इकोनॉमी में मनी जितना सर्कुलेट हो रहा है उसको क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कितना, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो मनी सप्लाई को कितनी रोकनी है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एडी क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेरिजन टू ईयर्स, तो कितना मनी इंजेक्ट करना है इकोनॉमी। तो ये सारा फंक्शंस कौन करता है? क्रेडिट कंट्रोल विच इज डन बाय द सेंट्रल बैंक. So you have to explain all these concepts in that answer, right? Next question है question number 24. It is of 6 marks. 6 marks का question है. कह रहा है distinguish between trade deficit and the current account deficit. ये सारे क्वेश्चंस आपको याद आ रहा है कि हम लोग जब से शुरू से जितने सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली हर बार ये क्वेश्चंस पूछ रहा है. करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस. तो देखिए फिर 2019 के पेपर में भी यही है. क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंग्विश between that is a trade deficit and current account deficit. ओके. सो जब हम लोग बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की, मतलब ट्रेड में क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हेन द इंपोर्ट ऑफ द कंट्री और when the import of the country is more than the export of the country. ठीक है, when the import of the goods, जो हम import कर रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है as comparison to export. और जहां पे export क्या हो जा रहा है, export becomes less than the import of the goods. Okay. फिर and when deficit in current account की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी inflow हो रहा है inflow from the visible and invisible trade are the less than the outflow from the visible and invisible trade. बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया कि ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन क्या हो गई. ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन हो गई व्हेन द इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स. वहीं अगर हम लोग करंट अकाउंट के डेफिसिट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो फ्रॉम द विजिबल एंड द इनविजिबल गुड्स, जो इनफ्लो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है एज कंपेरिजन टू आउटफ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. डिफरेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है
तो इसका हम लोग ने डिफरेंस देखा क्या, ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट का। यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स देख रहे हैं, और इम्पोर्ट यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट में क्या देख रहे हैं, इनफ्लो कितना हो रहा है गुड्स का और फॉरेन करेंसी का, और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है मतलब इनफ्लो कितना हो रहा है फॉरेन करेंसी का, और आउटफ्लो कितना हो रहा है फॉरेन करेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। देखिए नेक्स्ट है आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल okay, so flexible exchange rate system, so flexible exchange rate system एकदम आपको अच्छे से आता है। 3 टाइप्स के क्या होते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड दी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो जब हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल मीन्स वो क्या है, इजीली क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। जैसे तो इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, किसका इंटरवेंशन होता है, ऑल द एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्केट फोर्सेस जो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। कि अगर हम लोग बात करते हैं कि $1 इक्वल टू ₹70 है या $1 इक्वल टू ₹80 है, so this rate is determined by the market forces, that is demand and supply. Okay, तो इसी को क्या बोलते हैं, अब आपको एक कंसेप्ट भी याद होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी रेट डिटरमाइन होता है वो किसके हेल्प से होता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो जब $1 इक्वल टू 70 है, वही $1 इक्वल टू ₹80 हो गया, तो वो क्या सिचुएशन हो जाती है, वो हो जाता है आपका डेप्रीसिएशन हो जा रहा है। फिर वही $1 इक्वल टू 70 रुपीज है और $1 इक्वल टू ये 60 में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाता है, अप्रिसिएशन हो जाता है। एंड ये किसके थ्रू डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई का के थ्रू। और इसका हम लोग ने डायग्राम भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि डिमांड कर्व क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, या डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वही हो गया, एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो वी हैव डिस्कस, यस नेक्स्ट इज सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर है जो हम लोग ने 2019 का ही है, ऑल इंडिया सेट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, और आपको पता है 2019 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था नहीं, माइक्रो एंड मैक्रो था। तो माइक्रो का सेक्शन हम लोग को डिस्कस करना नहीं है क्योंकि वो इट इज इन क्लास 11, तो हम लोग बस मैक्रो का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है डिफाइन डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है, तो एकदम अच्छे से पता है, फॉर्म ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, कि किसी भी इंडिविजुअल को, कंज्यूमर, कस्टमर, कोई भी इंडिविजुअल की बात अगर हम लोग करते हैं, उसको जब भी फंड की जरूरत हो, मनी की जरूरत हो, वो क्या कर सकता है, मनी को बैंक से जब भी उसको नीड है वो वहां से विथड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट की तरह, टाइम डिपॉजिट की तरह कि इतना टाइम पीरियड रहना ही रहना है। वो क्या है, इससे पहले भी उस मनी को विथड्रॉ कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 2 आपको एग्जाम्पल देना है जो क्या है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिल रहा है बट वो सोर्स नॉन टैक्स का है। तो हम लोग को, आपको पता होगा, एक हम लोग क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना। फिर सेकंड क्या होता है, एस-चैट, मतलब जिसमें एस-चैट का मतलब आपको पता होगा कि जिसका भी कोई लीगल हायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है बट मेरा कोई लीगल हायर नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी कोई लेगा, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, वो सारी मेरी जो भी प्रॉपर्टी वो उसकी हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, एस-चैट। तो ये हो गया आपका फीस एंड फाइन्स, रजिस्ट्रेशन फीस
और जो भी डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, नॉन टैक्स में फीस फाइन्स हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, एस्चैट हो गया. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू. ओके, सो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में एक और में भी दे रखा है. सो इट इज ऑल ऑफ 1 मार्क. ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या था आपका 1 मार्क का था. 1 मार्क में क्या था, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना था. सेकेंड है आपका 2 एग्जाम्पल ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो भी डिस्कस कर लिया. नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिल रहा है बट इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ एनी टैक्स. टैक्स की तरह नहीं मिल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स से मिल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से मिल रहा है. उसको क्या है, दूसरे सोर्सेस के थ्रू क्या है रेवेन्यू मिल रहा है. तो फीस हो गया, फाइन्स हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, स्टैट हो गया. एंड बात हम लोग करते हैं प्रॉफिट हो रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, पीएसयूज का प्रॉफिट हो रहा है. सो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू. नेक्स्ट इसी में एक और में क्वेश्चन दे रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दी that is PSU are a part of the government fill in the blank. ठीक, कि डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है PSU से, गवर्नमेंट को क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स are the part of the government फिल इन द ब्लैंक दे रखा है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है. 4 ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट, सेकेंड वन इज टैक्स रिसिट, थर्ड इज कैपिटल रिसिट एंड डी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो आपको पता है अभी हम लोग ने इसका एग्जाम्पल भी लिया था, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट. ठीक है, सो 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे रहेगा. आपको बस यहाँ पे आंसर को फिल कर देना, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट. ओके, तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है एंड यू विल गेट दी 1 मार्क. आप अब एग्जैक्ट आंसर लिख दो, 1 मार्क का 1 लाइन है तो आंसर लिख देंगे, आप गेट दी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 14. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. सो देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था. रोल प्लेड बाय द सेंट्रल बैंक एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब यही है कि जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट को कोई भी उसको हर एक को इंडिविजुअल को आपको बताया है कि फंड की जरूरत होती है कहीं भी उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. तो अगर सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट को क्या होती है, फंड की नीड होती है, तो दे कैन ट्राइड मेनी ऑफ द ऑप्शन एज दे हैव. इनके पास जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको ट्राई करते रहते हैं फंड को रेज करने का, कहाँ से वो फंड ले सकते हैं, पीएसयूज को सोल्ड करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके, या कोई और सोर्स होता है इनकी सेविंग्स का, उसके थ्रू. बट अगर कहीं पे ऑप्शन नहीं बचता है कि फंड को, मनी को वो ले सके, कहीं से बोरो कर सके या कहीं से ले सके, सो वो लास्ट किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास. उसी को टर्म है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. ठीक है, तो वो क्या करती है, न्यू करेंसीज को इशू करती है. न्यू करेंसीज को इशू कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है, जिसको एक टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है, करेंसी को न्यू इशू करती है, न्यू करेंसी इशू करती है तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, इतनी बड़ी आपको एक डेजिग्नेशन मिल गया है कि मेंबर है आप एक एडवाइजरी कमिटी के, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो द फाइनेंस मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट इन द बजट. जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो बहुत कंसर्न्ड है कि कंटिन्यूसली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होता जा रहा है. सो स्टेट एनी वन मेजर टू कंट्रोल राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. आपको क्या करना है, आप वहां पे एडवाइजरी कमिटी में बैठे हो, आपसे बोला जा रहा है कि आपको ऐसा मेजर बताओ कि जो रेवेन्यू डेफिसिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि बताना है. तो हम लोग को या तो हम लोग रेवेन्यू जो भी डेफिसिट हो रहा है उसके 2 मेजर्स के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नए टैक्स को इम्पोज कर देगी. गवर्नमेंट के पास एक ही काम होता है, वो क्या कर देती है, टैक्स इम्पोज कर देती है. या जो टैक्स रेट
ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उनके रेट को इंक्रीज कर देगी, या सेकंड उसके पास ऑप्शन होता है कि उन सारे पे जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है अनप्लान, जो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है कि जो इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू फॉर द गवर्नमेंट, वो एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट क्या कर देगी, रोक देगी। ठीक है, अब जब रोक देगी तो उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा ना, तो पैसा उसके पास इनफ अमाउंट में। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इंक्रीज जो भी टैक्स है उसको इंक्रीज कर देगी और डिसइन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कि अपने जो भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, उनको सोल्ड आउट करेगी। तो उसके पास क्या होगा, फंड होगा तो वो क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। तो देखिए इसमें भी इंक्रीज emphasis on the tax based revenue and appropriate measures to reduce tax evasion। yes, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो टैक्स इवेजन हो रहा है, ठीक है, लोग टैक्स क्या करते हैं, अपने इनकम से कम दिखाते हैं ना, इनकम कम दिखाएंगे तो टैक्स भी क्या होगा, कम लगेगा। दिस इज योर प्रोग्रेसिव टैक्स। सबको पता है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि इनकम इंक्रीज होती है, सो टैक्स रेट विल ऑल्सो भी इंक्रीजेस। सो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इवेजन जो भी हो रहा है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट इसमें लिखना है, एक पॉइंट लिखेंगे सो यू गेट दी 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो इट इज ऑफ योर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 17 is the consumption function of an economy is C equal to 40 plus 0.8y. C equal to 40 plus 0.8y. Determine the level of income। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लेवल ऑफ इनकम को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब दैट इज y यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो वेयर APC विल बी 1, जहां पे आपका APC क्या है, 1 दिया हुआ। ठीक है, अच्छा APC अगर 1 दिया हुआ है तो उसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है। APC 1 देने का मतलब आप अपना एक वो डायग्राम याद करो जहां पे ये पॉइंट जितना हम कंजप्शन कर रहे हैं, जितनी हमारी इनकम हो रही है उतना हम पूरा कंजप्शन कर ले रहे हैं। पॉइंट आता था ना, याद करिए, जो हम लोग टेबल लेते थे, फिर यहाँ इसी पॉइंट पे आपकी सेविंग क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। ये ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, यहाँ पे आपकी सेविंग क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी, जहां C इक्वल टू कंजप्शन किसके इक्वल हो जाता था, इनकम के इक्वल। अब जब C इक्वल टू वाई हो जाएगा, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं y इक्वल टू कंजप्शन की वैल्यू दी हुई है 40 प्लस 0.8y। लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंजप्शन वो ऐसा पॉइंट कह रहा है कि जब कंजप्शन फंक्शन दिया आपका 40 प्लस 0.8y और आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इनकम फाइंड आउट करना है उस प्लेस पे जहां पे APC इज 1, जहां पे आपका APC किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। APC 1 के इक्वल मतलब कि रेशियो हम किसका बताते हैं, C और Y का, मतलब कंजप्शन और इनकम का, कि आपकी जितनी इनकम इंक्रीज कर रही है, आप जितनी भी आपकी इनकम है आप पूरा क्या कर ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज को क्या करे, अर्न कर रहे हो और आप उतना ही पूरा कंज्यूम कर रहे हो। तो उस केस में हमारी सेविंग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब कुछ पैसा नहीं बचेगा तो हम कहीं पे सेविंग नहीं करेंगे। तो यहाँ दिस इज दैट पॉइंट जहां पे हमारी सेविंग 0 हो जाती है और कर्व हमारा कंजप्शन और इनकम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है दिस पॉइंट पे। तो जब ये हो जा रहा है तो C इक्वल टू वाई हो जाएगा, कंजप्शन इनकम के इक्वल हो जाएगा। जब कंजप्शन इनकम के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि C इक्वल टू वाई एंड C इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। सो y इक्वल टू y और ये वाला y इधर आ जाएगा, y 0.8y is equal to 40, right? So y minus 0.8y is 0.2y is equal to 40. Okay, तो 0.2y equal to 40. So y equal to 40 upon 0.2. Y equal to आपका I think it is given in crore. So you have to mention rupees and crores. सब भूल जाइएगा, बस इसको लिखना कभी मत भूलिएगा, रुपीज एंड करोड़। ओके, तो आपका आंसर यस, रुपीज 200 करोड़ आ गए।
देखिए क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही क्वेश्चन में ही होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। बस यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। हाँ, उसके साथ एक कह रहा है, अच्छा एक ऑप्शन में दे रखा है, चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है विच ऑफ दी टू एपीसी एंड एपीएस टू सेव कैन बी नेगेटिव एंड वाई। कह रहा है कि एपीसी और एपीएस में से कौन सा नेगेटिव होता है और क्यों। तो कह रहा है आउट ऑफ एपीसी एंड एपीएस, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। हम लोग हमेशा जानते हैं कि एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। सो एपीएस कैन बी जीरो, और एपीएस आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि हम लोग कंजप्शन, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंजप्शन को क्या करें, कंजप्शन हम कभी जीरो नहीं कर सकते, बट ऐसा केस हो सकता है कि जहां पे एपीसी सी इक्वल टू वाई हो रहा है वहां पे हम सेविंग ना करें। या आपका ये वाला सिचुएशन, जब हम लोग सेविंग का बनाते हैं, ये वाला सिचुएशन, तो ये तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है कि नहीं। तो एपीएस क्या हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कंज्यूम कुछ ना करें और अगर मेरी इनकम आ रही है 50 रुपीज, मैं ये कहूँ नहीं मेरे को कुछ नहीं खाना है, बस पूरा सेव कर दो। इज इट पॉसिबल? कभी नहीं। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि एपीसी क्या होता है, वो कभी भी जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो। बट इफ वी टॉक अबाउट द एपीएस, अगर हम लोग एपीएस की बात करते हैं, एपीएस मीन्स आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, उस केस में हम बात करते हैं कि हाँ वो हो सकता है। क्योंकि अगर मेरे पास, अगर हम लोग जब कंजप्शन कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी इनकम जीरो भी है, तो हम कहाँ से लेकर आ रहे होंगे? हमारे पास कुछ, हम वो तो नहीं करेंगे कि हम बैंक रॉबरी कर रहे हैं, चोरी करके आ रहे हैं, हम उस केस की तो बात नहीं करेंगे ना। एक आइडियल इकोनॉमी में हम बात क्या करेंगे कि हमने कुछ पहले की सेविंग कर रखी थी, ठीक है, कुछ सेविंग कर रखी थी, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो दिस इज योर सिचुएशन जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एपीसी क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, एपीएस क्या है, निगेटिव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes, so the question explain using the numerical example how an increase in reserve deposit ratio affect the credit creation power of the banking system। सेम प्रोसेस है जो क्रेडिट क्रिएशन का आप लोग पढ़ रहे हो कि रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, अगर 20 से 50% कर दिया जा रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। वही कि अगर 1000 हम ले रहे हैं तो उसका 20% हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, एलआरआर रख रहे हैं, और बाकी जो बचा उसको हम लोग लोन पे दे रहे हैं। फिर वही 800 आपका 800 का 20% रिजर्व रख रहे हैं, बाकी हम लोग लोन पे। तो ये सारा एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज रियल जीडीपी डिफरेंट फ्रॉम द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से डिफरेंट कैसे है, एग्जाम्पल देना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस पेपर। प्रीवियस क्लास में हम लोग आई थिंक 2 और 3 क्लास हम लोग ने यही क्वेश्चन को डिस्कस किया है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी। कि अगर गवर्नमेंट क्या अपनी बजटरी पॉलिसी को कैसे यूज कर सकती है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम। आपको याद होगा कि जब हम लोग गवर्नमेंट बजट में पढ़ रहे थे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम की बात भी हमने की था कि जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है, क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर 21, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी टू रिड्यूस inequalities of income। How the government use their budgetary policy to reduce the inequalities of the income। कि गवर्नमेंट कैसे
अपने बजटरी पॉलिसी को यूज करती है रिड्यूस करने के लिए। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर एलोकेशन करती है रिसोर्सेज का, जितने भी रिसोर्सेज हैं। फिर जो भी रिचर पीपल है उन पे क्या करती है, ज्यादा टैक्स इम्पोज कर देती है। और जो भी ऐसे गुड्स हैं जो फॉर दी सोसाइटी, फॉर दी इकॉनमी के लिए गुड अच्छे नहीं है, तो उन पे ज्यादा टैक्स इम्पोज कर देती है। वहां से ज्यादा अर्निंग होती है, तो वो अर्निंग वो प्रॉफिट वो उन सेक्टर पे लगाती है, उन एरिया में लगाती है जहां पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। या जैसे हम लोग ने एग्जांपल देखा था खादी का, खादी पे क्या करती, सब्सिडीज प्रोवाइड करती, जो भी डोमेस्टिक गुड्स हैं या जहां से हमको इनकम को जनरेट करना है तो सब्सिडीज प्रोवाइड करती उन्हीं पैसे का, तो वो क्या करते हैं और ज्यादा इनकम को जनरेट करते हैं। तो जो भी इनइक्वालिटीज हो रही है उसको रिड्यूस करती है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू to explain, to solve this chapter, solve this paper in the next class also. Okay, thank you.